Assalamu everyone. Welcome back to the another episode of Podcast Grow Together. I am your host, Mudassir Raza, and today we have a very special guest, those who are working with a number of special students. A very warm welcome, Sukaina Hussain, Ebrahim. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. How are you, Mudassir? I am good. और again मंडे है और मंडे को बड़ा मुश्किल होता है कि आपको थकावट ही Monday खत्म नहीं हुई blues? होती है। हाँ, तो आपका कैसा गुजरा मंडे? पहले ये तो ये बताएं हमें। Yeah, Alhamdulillah, it was good. Though, like yesterday, I had a lot to do, but still, the start was a good one. जनरली आई लाइक थर्सडे ना, क्योंकि थोड़ा सा डिक्लाइन तब जाता है कि हाँ वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। We're in hopes. हाँ, तो थोड़ा सा एक माइंड होता है यार, आप थोड़ा सा आराम करने का मौका मिलेगा, बट संडे नाइट से टेंशन दोबारा वो ऊपर स्क्वीज हो जाती है कि यार अब बैक टू वर्क। I feel Sunday morning से Monday blues शुरू हो जाते मुझे. That's what I feel. Again, I have watched your interview few days. I guess you have recorded 9 months back. कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि बीइंग का एजुकेशनलिस्ट भी, ये जो हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, और फिर उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क का। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 में आपने अपनी लाइक जॉब से रिजाइन किया और फिर आपने जो आपका पैशन था उस पर आपने फुल टाइम काम किया। तो आई वांट टू डिस्कस फर्स्ट डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो हम आजकल बच्चों को सिखाना भी चाह रहे होते हैं और डर भी रहे होते हैं जितनी एज बढ़ रही होती है फैसला करने में। तो वो सिनेरियो क्या था जिस टाइम आपने डिसाइड किया? All right, I was working with a very renowned school system and one of the branch. Basically, I was working there, working as a subject coordinator. But later, what happened? They promoted me to being coordinator for resource and remedial system, the entire system. But unfortunately, it was just for books. I was never given chance, rather than like few weeks ke liye diya gaya, but it was never इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया वो really. प्रोग्राम। Yeah. So that's this special needs. I mean, working with those who learn differently, or let's say exceptional needs, that's really close to my heart, because I think in 2009 or 10, I came to know that my son has learning problems. There was a time when I said, how come it's possible? When I went for assessment and evaluation, I came to know, acha pata chala bhai inko dyslexia. And I was like, उस तरफ तो तारे ज़मीं पे भी नहीं थी, और डिस्लेक्सिया के बारे में इतना नो-हाउ भी नहीं था। बैक लाइक इतने 12-13 साल पहले। सो आई वाज लाइक, इट्स नॉट पॉसिबल, माय डॉटर इज अ पोजीशन होल्डर, राइट? ये कैसे हो सकता है? आई टुक इट एज एन इलनेस। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, यही हमारा माइंडसेट है ना। जब तक आपको नॉलेज नहीं होती, वो चीज आपको एज इट डराती इज है। एज इट इज। उसके बारे में आप पहले से अगर अपना ब्रेन मेकअप कर लेते, तो आपका डर खत्म हो जाता है। सो slowly and gradually, I started taking up the courses, because remediation was very expensive at that time and it wasn't so common. So like later, after a few times, I realized few years, I again went for evaluation पे, और पता चला भाई IQ level लो है, ये dyslexia नहीं था. Okay, I said fine. Then again, IQ level के तो कोई ऐसे traces नहीं थे. By the time, as I told you, I started taking courses on child psychology or remediation and brain and languages. Then at that time, मैं अपनी school से select हुई थी SAP के लिए. SAP is like done from UK by Cheryl Watkins. हर campus से एक select होती है. It's basically mostly ये कहा जाता है कि it's about empathy. और जो check करते हैं वो empathy check करते हैं. So maybe my field, considering my field कि मैं इतना ज़्यादा बच्चों से involve हो जाती हूँ जो differently learn करते हैं. So there was quite a heavyweight program that was in 2018 January. So then I went for that course, and it was very amazing, because वो ना सिर्फ बच्चों के साथ काम करता है, abuse हो, child abuse हो, trauma हो, या इस तरह का कोई bullying हो, या कोई past history में हो. और later when you go deeper into the same course, it works with adult as well. So that was something very good, which was given by my institution to me. It was a gift, I would say, though it was, of course, हम लोग का तो एक bond sign करते हैं, but I'll call it as a gift. So फिर पता चला IQ level low है. At the end, जब मैं stage पे आ गई, जब मैं दूसरे बच्चों को देखती थी और compare करती थी, though I don't believe on comparing, but register करना कि वो evaluation right or not, I realized no, it was just developmentally delayed. मेरे बच्चे के milestone delayed थे, जिसको अपनी मर्जी से कर करके किसी ने डिस्लेक्सिया कह दिया. अब ना माशाल्लाह इज एन A2 माशाल्लाह, वो कॉलेज में. हाँ, ये तो नहीं कहती कि A1 आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज डूइंग वेल इन हिज ओन स्पेस. ग्रेट।
So, and of course, on the other hand, my daughter is becoming a clinical psychologist. She's हाँ, doing MPhil जबरदस्त। and she's on span. अच्छा, अगेन थोड़ा सा So I जब मैं have like साइकोलॉजी के बारे में both जानना शुरू किया तो experience. मेरा बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि यार पढ़नी चाहिए। खैर, आई डन वन कोर्स बट स्टिल आई डू बिलीव दैट यार बड़ी मजे का कोर्स है, सब्जेक्ट इसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। And it's huge. It's हम्म। really huge. आप जितना जितना करेंगे वो आपको लगेगा कम है। मगर मेरा फोकस यही था, फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद वो बढ़ते 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 बच्चों की मेंटल हेल्थ। Right now I'm working at, you can see, Learning लर्निंग Lab. लैब। Yes. And I'm working as a director of programs here. And now my focus, of course, I work with remediation. I go for counseling. I give, in between what I did, I took Lego as a cognitive play, which was not even introduced in Pakistan. There was one guy, we started in 2019. Lego was introduced first time in Pakistan as a cognitive play because ग्रेट। it has huge benefits. वो लर्निंग प्रॉब्लम के साथ काम करता है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन के साथ, एडीएचडी के साथ, और मेमोरी के साथ, इवन डिमेंशिया और एल्जाइमर्स के साथ किस तरह वर्क करता है। बस यू नीड टू बी हैव इनसाइट एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर कोर्सेज. So at that time, I realized, oh, I can include Lego. I can use blocks, use resources rather than bombarding them with a हाँ, car. Academic and पढ़ाई 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 यूजलेस का वो फायदा होगी, इम्पैक्टफुल नहीं। but एक तरीके से. बैलेंस। Yeah. अच्छा मैडम, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है, जैसे आपने कहा कि आप डिफरेंट लोगों से मिलती रही और फिर वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा। तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका बच्चा किस एक्चुअल प्रॉब्लम को फेस कर रहा हाँ, ये मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, बड़ा बड़ा क्रूशियल सवाल है, क्योंकि मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं ना, कहते हैं वैल्यूएशन कर है। दो. मैं यहाँ भी क्लियरली बोल रही हूँ, मैं उनको भी क्लियरली कहती हूँ, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल हु कैन असिस्ट योर चाइल्ड. सही है, बट आई कैन रेज द रेड फ्लैग्स. ठीक है, मैं हाँ। आपको बता सकती हूँ कि नहीं, ये बात गलत है, बच्चे को ये नहीं है. अनफॉर्चुनेटली कुछ इंस्टीट्यूशंस आजकल ऐसे हैं, हर दूसरे बच्चे को या तो वो एडीएचडी क्लेम कर रहे हैं, हम्म। और आफ्टर पैंडेमिक हर दूसरा बच्चा जो है वो स्पेक्ट्रम पे चला गया. तो हम्म। इट्स अ फैक्ट दैट स्क्रीन ऑटिज्म आया है, क्योंकि हम्म। पैंडेमिक में आपको पता है हम लोग ट्रू। स्क्रीन से कितना ज्यादा अटैच हो गए कनेक्ट थे. हो गए। और इतने हम सब फ्रस्ट्रेटेड थे, पेरेंट्स बिजी थे, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज लाइक, लेट्स से स्टैग्नेंट. कुछ पता ही नहीं चल रहा था व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. पेरेंट्स ने, सब बच्चे घर में थे, उनको स्क्रीन दे दी, बिकॉज, और उसके अलावा भी स्कूल्स भी आ गए थे स्क्रीन पे. सब I want to ऑनलाइन। blame that, but the screen time somehow gave this concept of screen autism. क्योंकि जितना ज्यादा आप देखो बच्चों में रोबोटिक वॉइस, आपको रोबोटिक स्टाइल नजर आएगा, उनका बोलने का एक्सेंट रोबोटिक होगा, then you will see them jumping या। jumping. What? Hyperactivity. Somehow ADHD. क्यों? क्योंकि स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो रहा है. स्क्रीन पे वो क्या देख रहे हैं मुझे बताइए? टॉम एंड जेरी, ये कार्टून, वो कार्टून, ये कार्टून. So क्या हो रहा है? कार्टून इज नॉट मेकिंग यू या। सिक, इट्स मेकिंग यू. हाँ, एग्जैक्टली। देन ऐड ऑन आजकल का नहीं, हमारा हमारा डाइट. वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। वो आप सोचे कि इसके ऊपर अब जब पूरा सैंडविच बनेगा तो ये तो होगा ना. सो यस, आई वुड से कि नहीं, सम टाइम पेरेंट्स जब आते मेरे पास, रिसेंटली एक केस आया था, एंड शी वाज सो स्कैर्ड. शी सेड, मैं बहुत डरी हूँ, पता नहीं अब मेरे बच्चे को क्या कह देंगी, ये कह देंगी, स्पेक्ट्रम पे कह देंगी, एडीएचडी पे. मैंने कहा मैं क्यों कहूंगी? बोलती नहीं, मुझे स्कूल वाले ने भेजा है. मैं कहा नहीं, मैं नहीं कहूंगी, इसलिए कि मेरे पास ये इख्तियार नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू टैग अ चाइल्ड. Great. जजमेंट अल्लाह पे रखिए, पर हम्म। जज बच्चे को करूंगी क्या इन्होंने कहा है वो सही है कि नहीं. हाँ, ऑफ कोर्स इन बिटवीन होते भी हैं. सो व्हाट आई डू, दैट्स नॉट माय राइट कि मैं इनको रिपोर्ट लिख के दे दूं, भाई बच्चा इज ऑन स्पेक्ट्रम, इंडिविजुअल. नो, I just direct them to the right professional. That's my task. At least showing them the right direction helps them. एटलीस्ट। Counsel them. I mean, awareness, ताकि acceptance तो आए. Awareness होगी जब भी acceptance होगी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे हमने पेरेंट का तो प्रॉब्लम डिस्कस किया कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, बट बीइंग अ स्कूल, स्कूल का इसमें क्या रोल बनता है कि वो इस इन्वायरमेंट को या डिफरेंट बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। All right. Recently, Learning Lab के platform से, as being director programs, we have launched 2 school improvement plan. One is done under Shamsa Danani, right? ग्रेट। Know her, right? She's a renowned educationist and she's living in like Canada. एक होती है ना कि माशाल्लाह से
जिसको देख के मोटिवेशन बस आए, इंस्पिरेशन आए। या और इवन शी इज नॉट हेयर, बट ऐसा लगता नहीं कि वो पाकिस्तान में नहीं है। शी लिव्स हियर, हाँ। शी और लिव्स अभी जो हियर। लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई गेस 8 अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेशली यहाँ पे आई हुई थी The silver lining for teachers, हम्म। yeah. तो Was 1st of August. जो भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है उस पे बस वो फौरन से उसको एक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती है। I call it, उसको मैं ऐसे कहती हूँ, तुम मेरी गूगल हो। मैंने कहा सिरी, मैंने सिरी बोलो, गूगल बोलो, and then people literally call her या solar धनान। I really love the idea। और मेरा ये है कि ये जो दो प्रोजेक्ट आए, like I'm working, she is the one who introduced me, and then we came up with idea of school improvement plan, जहाँ हम एक प्रोजेक्ट बना के स्कूल को ऑफर करते हैं। ठीक है, वो वहां से उसको लीड करती है, एंड ऑन ग्राउंड्स मैं हाँ, होती हूँ। आप ग्रेट। समझे, ऑब्जर्वेशंस एंड एवेल्युएशन मेरा काम। Then the another project is inclusion, that's my baby, but of course शमसा के बगैर वो चलता नहीं है। So उसको यहाँ टिपिकल ट्रेनिंग तरीके से कराने के बजाय, व्हाट आई डिड, आई आस्क्ड शमसा हेल्प मी आउट हाउ टू डू इट ऑन इंटरनेशनल लेवल, ताकि वो एक इंटरनेशनल टच आए मुझे। शी सेड ये कंटेंट कंटेंट कंटेंट, नो, we learn by doing, right? It should be hands-on experience। ये content लेके वो class में जाएंगी तो how they are going to use inclusion? They should implement it. They should have live, real life scenarios. They can do it. They can do it on each other. They can experiment it, and the same thing is going to do in their schools, in their classes. So I would openly name it that the very first school took the project is Progressive Public School। हाँ, ग्रेट। I'm so proud with the open-mindedness of Miss Saima Khan। She is the CEO of Progressive ग्रेट। Public School, and she's from abroad. So I know the reason behind this। She said, do it. And honestly, everything, it's of like 12 courses, then parenting session, then evaluation, data collection, and उसके बाद देखना whether implement हो रहा है कि नहीं। Then I'm going to help them out with forms। अब आपके पास special needs आएगा तो उसके forms अलग होंगे ना। We need to take the medical history। I said, for each and every child, for initial months, I'm there. I'll be sitting there and helping you out how to do this, because it's not a one-time show। It's या not आप एक कोर्स के बाद फिट नहीं हो जाएंगे। You need continuous कंटिन्यूस लर्निंग। consultation and assessment। And I mean, I would say that once a client, always a client। अच्छा, एक We और बड़ा take it इंटरेस्टिंग personally। पॉइंट था कि हम देख रहे होते हैं यहाँ पे, आई गेस सिंगल नेशनल करिकुलम की जब हम बात करते हैं, ये गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों पे काम कर रही थी, और अभी इस तरह के प्रोग्राम्स हमें नज़र आ रहे होते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो हम इसको करिकुलम का कैसे पार्ट बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, इंक्लूजन को, कि जहाँ पे एक फ्रॉम टॉप टू बॉटम चीज़ ट्रांसफर हो जाए। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, इंक्लूजन चले हम कर रहे हैं, कोई स्कूल नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम तो रेडी नहीं है, बहुत से बड़े स्कूल भी रेडी नहीं है, और अगर रेडी भी हैं तो उनका जो पैकेज है ना, वो इतना हैवी है कि आप कोई आम पेरेंट्स के हाथ में आ भी नहीं ट्रू। सकता। ट्रू। सो जब जब मैंने इंक्लूजन का ये था, मेरा आइडिया ये था कि इसको लाया जाए उन स्कूल के लिए जो मीडियम है, जो पेरेंट्स के। हम्म। फिर वही मैं कहूंगी, अफोर्डेबल फीस। यहाँ अब एक बच्चा इंक्लूजन पे जा रहा है तो उसके साथ एक शेडो टीचर जाएगी जो 20-25 हजार लेगी, और क्योंकि इनका टाइम अलग हो रहा है तो अच्छा इनकी फीस इतनी ज्यादा होगी। हाँ, आई अग्री कि ऑफ कोर्स यू नीड एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मॉडल बनाना पड़ेगा उसका कुछ। सपोर्ट। एंड इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 6 घंटे बच्चे को जो न्यूरोटिपिकल नीड का नहीं है, न्यूरो डाइवर्स है, उसको आप 6 घंटे नहीं बैठाएंगे। बट जहां जहां इंक्लूड करना है, ग्रुप प्रोग्राम में कर लिया, राइम टाइम में कर लिया, सर्कल टाइम में कर लिया। एंड रिमेंबर टू कस्टमाइज द सिलेबस। अच्छा, आप जो कस्टमाइज की सिलेबस की बात बहुत होती है, बट अगर हम बीइंग एजुकेशनिस्ट बात करें तो एक क्लास में 25 बैठे बैठे हुए हैं, कहीं पे हमने देखा है 30-50 ही बैठ जाते हैं इस डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, जैसे आपने बात की कैटेगरी से पाकिस्तान में। गवर्नमेंट में जाए तो वहाँ एक बड़ा सा क्लासरूम है, ना कोई टेबल चेयर है, बच्चे सारे बैठे हुए हैं। कितना रियलिस्टिक है इस मॉडल को अप्लाई करना, या फिर एक पहले स्टेज पे इसको एज अ मॉडल स्कूल को तौर पर रन किया जाए, दिखाया जाए, और फिर उसको इसके रिजल्ट्स को बाकी स्कूल के साथ शेयर किया जाए? व्हाट डू यू सजेस्ट? अब इसके लिए अगर मैं आपको सिंपल ऐसे कहूँ कि आप एक छोटे स्कूल को अगर आप हम्म। देखेंगे, मैं तो आपसे यही करूंगी, अगर नेक्स्ट आपको अपना एपिसोड करना है तो आप प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल की, इसलिए बोल रही हूँ कि आपके पास हाँ, रियल ग्रेट। लाइफ हाँ, हाँ, सिनेरियोज होंगे। एग्जैक्टली You एग्जैक्टली। don't know how to do व्हाट्स it। हैपनिंग ऑन ग्राउंड?
अभी तक हम बड़े स्कूल्स की बात करते रहे, हम्म। वहां आपको पता चलेगा सॉलिड अच्छा इस तरह चल रहा है, ऐसे लेके चलना है। हाँ इनिशियली मुश्किल लगेगा, बट यू नो, अगर आप आइडियल क्लासरूम देखो तो इट शुड नॉट एक्सीड देन 20 चिल्ड्रन। या। इफ यू आर चार्जिंग देन यू नीड टू स्प्लिट योर क्लासरूम। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर को आना है, केटर करना है। आप हम्म। मानते हैं नॉर्मल क्लासरूम में भी आप चले जाएं तो न्यूरोटिपिकल बच्चे, एक ऑडिटरी लर्नर होगा, एक विजुअल लर्नर ट्रू। होगा, एक ट्रू। रीडिंग राइटिंग होगा, एक टेक्टाइल होगा, सही है, और कोई जो है वो किसी और तरीके से। तो तेरा 5 काइंड्स। या। मैं सीखती हूँ रीडिंग एंड राइटिंग से। मुझे कोई बोले वीडियो सुनती रहो, ऑडियो सुनती रहो, वीडियो देखो, मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। मैं तो 3 घंटे की मूवी नहीं देख पाती। मैं उसमें एक भी दफा सिनेमा जाने का अगर इत्तेफाक हुआ तो मैं तो सो गया था फिल्म के अंदर। तो उसके बाद मैंने कहा यार या इवन के स्टेडियम मैच हो गया तो मैं नहीं जाता कि यार मुझे पता है कि वो इतनी लंबी बोरियत में बर्दाश्त नहीं कर अटेंशन पाऊंगा। स्पैन नहीं है। हाँ। आप एक ह्यूमन अटेंशन स्पैन 40 मिनट पे आके खत्म। आप और मैं भी नहीं कर सकते, जब ट्रू। भी तो जूम ने पहले ही 40 मिनट्स का रखा हुआ है। तो यार, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता चीजें आती हैं। आप उसको, उस बच्चे को, आपके पास एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, आपका एक मेन टीचर ऐसा हो जो इन चीजों के ऊपर, सारी टीचर आप नहीं कर सकते उनको, या। हर टीचर को पैशन पे नहीं ला सकते, बट आपका एक जेम तो होगी ना टीचर जो यस। इन चीजों को टीच करती हो। अब आपने उसको रख दिया बीच में, शी कैन एड ऑन, शी कैन डिजाइन द सिलेबस, सही है, कस्टमाइज बनाया। अब जो बच्चे का टेस्ट का मौका आएगा, रादर देन गिविंग हिम 10 टॉपिक्स, अब चलो 10 टॉपिक्स दे दो, बट देन गिविंग चंक्स। अब आप उसके एक एक पेज के आंसर नहीं मांगो। आ, अकल क्या कहती है, उसने आपको बता दिया व्हेन डिड पाकिस्तान केम कम इनटू बीइंग, राइट? सो कब आया था? 19 अगस्त, 14 अगस्त 1947। बात खत्म ना। आप उसके लिए पूरा हम्म। पैरा क्यों मांग रहे हैं जो नहीं कर पा रहा? व्हाई आरंट यू ओके विद अ चाइल्ड गिविंग यू अ बुलेट आंसर? अब तो प्रेजेंटेशंस भी बुलेट में लोग देखते हैं। जी Who जी looks जी। at the presentation content? हम्म। और मैं ज्यादा आप पिक्टोरियल ग्राफ राइटिंग के की थ्रू आप बात करते, रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डेटा को डिस्ग्राफिया, अपने। हाँ। और डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया इज राइटिंग प्रॉब्लम। आप अभी तक चल रहे हैं, राइटिंग सही नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा है, कलर लाइन के पार जा रहे हैं। देयर वर्ल्ड, मेरी राइटिंग तो अभी तक देयर, सही नहीं हुई। बचपन में बहुत रजिस्टर हमने फिल किए राइटिंग के, मगर वो अब कोई कहता भी तो मैं कह देता हूँ यार मेरा डॉक्टर बनने का शौक था, नहीं बन पाया तो एटलीस्ट राइटिंग तो वैसे ही रहने दो मेरी अब। कोई बात नहीं, पीएचडी कर लेना, नो प्रॉब्लम। इवन यू कैन कॉल डॉक्टर। क्योंकि वो लिख के दो ना बिल्कुल बिल्कुल वैसी लगती है जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाके उसको देखा हो। तो मैं यही कहता हूँ बच्चों को यार कि वो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हो पाई तो वो एटलीस्ट यूनिवर्स पेंडेमिक आ रही में, है। पेंडेमिक में हम देख चुके, हर कोई टाइपिंग पे हम्म। आया था, मगर अब भी हम राइटिंग पे ही जोर देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट आपको पता है मेंटल हेल्थ बच्चों की क्या जा रही या। है? वी नो द सुसाइड, सुसाइड का रेशो आपको पता है? आपसे ज्यादा कौन जानता होगा? मुझे सिर्फ ये बता दे मुदस्सिर, आप इस फील्ड में हो, सही है, आप ओ लेवल को पढ़ा रहे हो, एम आई राइट? या। आप मुझे बताइए क्या स्ट्रेस लेवल होता है? वॉमिटिंग, एंजाइटी, हार्ट ट्रू बीट, ट्रू 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 ट्रू। bullied by parents, bullied by teachers, bullied by classmates, इसका अच्छा नहीं आया, फिर सॉरी सोशल मीडिया पर पेरेंट्स लगाते, ओह वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ माय सन गॉट A स्टार, ये अच्छा ये भी एंड अगेन दैट, इसकी क्या चलिए जरूरत करें, है स्टेट अगेन। चलिए कर लें, आप खुशी करें। व्हाट आई डिड, आई पुट अप माय सन्स रिजल्ट, इट्स स्टिल ऑन कराची स्कूल गाइड। उसके अंदर 2 D थे, 3 B थे और 1 C था। मैंने कहा आई एम सो प्राउड ऑफ माय सन बिकॉज ही इज हाँ। कंपीटिंग विद हिज या। ओन सेल्फ। मैं या। कहा दिस इज मी। हम्म। Why don't you accept your child? He is individual, he is unique. हम तो स्ट्रेंथ ढूंढते ही नहीं ना, हम तो वीकनेस को पकड़ के कूदते रहते हैं। बट अगेन वो फिर ऐसे बच्चे हाथ से जाते। बल्कि ये तो चलिए एक पेरेंट और बच्चा वाला सीन है, बट सबसे बुरा मुझे लगता है कि आप किसी घर मिलने गए हो और बच्चे क्या कर रहे हो। अच्छा खैर वो बच्चा बता देगा रिजल्ट क्या आया, मतलब आपने क्या करना है जान के कि उस बच्चे का रिजल्ट क्या आया है। कोई तो ऐसी बात करो हाँ। जो नया दिन लाए। Heading towards 2024, living in last days of 2023, यस। कहाँ जा रहे हैं? फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे में तमीज नहीं है, बदतमीजी कर रहा है, ये हो रहा है, तो आप उसको उस लेवल पे लाए क्यों? मेल्ट डाउन हो रहे हैं, हाँ ये नहीं हो रहे बच्चे हैं। गैदरिंग्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, नहीं भी जा रहे होते रिलेटिव्स के यहाँ, उसका रीजन यही होता है कि उनको पता है कि हम जाके ट्रॉल होंगे। वही वो चार पांच से सवालात होंगे जो कोई ना कोई वहाँ पे आके हमसे पूछेगा। तो अगेन सब बच्चा सोचता है मैं अपने कमरे में अपने आप को बंद रखूँ या ये मैं यहीं स्टे कर लूँ आप लोग चले जाएं।
आइसोलेट कर दिया, सही है, आइसोलेट किया अपने बच्चे को, उससे उसकी इंडिपेंडेंसी सीखी, सही है। अब वो डिपेंडेंट हो गया आपके ऊपर, आप उससे मॉक कर रहे हैं, यहाँ से कंपेयर, बहन भाइयों में कंपेयर। एट ए टाइम शायद मैं भी की हूँ, बट मुझे या पता है मेरा बेटा कहाँ स्टैंड करता है, वो मेरा हीरो है। आई टेल हिम यू आर माई रोल मॉडल। एंड द फर्स्ट टाइम जब मुझे उसका पता चला तो मैं उसको तारे जमीन पे दिखाने ले गई। मजे की बात एंड में कहता है, अरे मैं ईशान जैसा नहीं हूँ थोड़ा। ऐसे ही so, you should tell your child if he has हाँ, dyslexia. उसको पता हो, उसको कोई एज ए नाइटमेयर नहीं है। It's somebody asked me in between the training के क्या ऐसे बच्चों की शादी होती है, and I said really it's a ये भी कोई brain virus. सवाल? आपको मेरा टिपिकल नहीं लगेगा इंटरव्यू, बिकॉज नहीं आई नहीं, हैव अ मुझे लॉट इनसाइड। जनरली होता है कि आप बहुत ही जो रियलिस्टिक चीज़ है उसको वैसे ही प्रेजेंट किया जाए ताकि सामने वाले तक भी चीज़ समझने की कोशिश है। और अगेन बहुत ही कुछ लोग हैं जिस डोमेन में काम कर रहे हैं, और एक बहुत से पेरेंट्स तो इस प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर पाते अपनी कि यार ये हम किससे बात करें या किससे पूछें। या जनरल हमारे पास कोई ऐसा स्कूल भी नहीं जो हमारे फिंगर टिप्स पे है, ये स्कूल में जो आपको ये इस किस्म की बच्चों की नीड्स को फुलफिल किया जा रहा होगा। बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, पर उसको इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा होता है। पेरेंट्स भी शायद डर रहे हैं इसलिए कि टैग हो रहा है बच्चा। जी जी। अक्सर स्कूल वाले ये मांगते हैं, चलें कि क्या प्रॉब्लम, असेसमेंट करवा रहे हैं, चले सही है, मैं मानती हूँ, ताकि पता चले उस हिसाब से काम किया जाए। बट फिर उस बच्चे को सपोर्ट दें। यस। या फिर ऐसा ही होगा कि प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल पे मिस साइमा खान जैसे आएंगे प्रिंसिपल और टेक ओवर कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड लेट्स होप हम भी कोई ऐसा हाई चार्ज नहीं कर रहे, वी आर जस्ट गिविंग हार्ट एंड सोल। और इट्स नहीं कि इतने घंटों की बात हुई तो इतने घंटे नहीं, द टीचर्स हैव एक्सेस टू माय नंबर। इवन मेरा नंबर तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अगर मशहूर है तो मेरा ही। एवरीबडी हैज माय नंबर बिकॉज आई ओपनली गिव। देयर इज नो प्राइवेट नंबर, अच्छा, दो देयर इज नो पब्लिक। मुझे लगता है टीचर्स के नंबर तो ऐसी बहुत आवामी है। अगर आप किसी को बोलो मैसेज कर देना तो वो ये नहीं बोलता नंबर दे दें अपना, वो कहता है ठीक है मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो अच्छे खासी कॉल्स आपको आ रही होती हैं बाज़ दफ़ा। और मैंने आपकी आई गेस एक पोस्ट भी पढ़ी थी, कहीं आपने लिखा हुआ था कि अगर मैं कॉल नहीं उठा रही हूँ इट मीन्स मैं किसी ऑनलाइन मीटिंग में या कोई काम कर रही होंगी, थोड़ा पेशेंस रखें। मैसेज बाद में बात हो जाएगी। दैट्स डेफिनेटली हाँ दैट्स मी। पीपल वुड डायरेक्टली, देखिए सिंपल बात है, अगर आप मुझे फेसबुक पे कॉल कर रहे हैं हाँ, थोड़ा सा ब्रेक, ऑब्वियसली। मैसेजेस को, मैसेजेस को। अच्छा, जैसे अभी हमने कम्युनिटीज़ की बात करी, किस तरीके से उनको पॉजिटिव पार्ट प्ले कर सकती हैं इसके अंदर सॉरी, इंक्लूजन कम्युनिटीज की जो हमने बात करी कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आ, वो क्या इसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं? उनको पार्ट प्ले करने से पहले अवेयरनेस सेशंस अटेंड करें, अवेयरनेस हम्म, कैंपेन उनकी। जैसे बुलिंग में मैंने या 30 सितंबर को लर्निंग लैब में फर्स्ट सेशन लॉन्च किया था, और अभी सैटरडे को मेरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ECDF पे मेरा इंटरनेशनल बुलिंग पे था। आई वाज द मॉडरेटर एंड देयर वर ग्रेट। टू स्पीकर्स एंड थ्री जो थे वो इंडियन स्पीकर्स थे। आई एम एसोसिएटेड volunteering with them from since 2020 during the pandemic, and one of the Pakistani, like part of our team, Shabista Bakhtiar was the speaker from Pakistan. ये वो प्लेटफॉर्म है जो जिसपे बहुत कम पाकिस्तानी है, आई थिंक टिल नाउ 2 से 3 लोग आए होंगे, बट आई एम प्राउड कि मैं इनके सेशन भी मॉडरेट करती हूँ। दिस टाइम दे रीच मी आउट after knowing my bullying session, they said, can you do a webinar on bullying? And I felt proud. I was heard around the world, ग्रेट। not for my fame, just for awareness. अच्छा। उसके लिए भी we are offering different programs to different schools. एक concept में आ गया है शायद लोगों में, they said it's charged. I said yes, because my bread and butter is on that. Ask me to do free webinar online, but see, if I'm going to give everything for free, that's not, it's going to lose its worth. Honestly, आप भी इसकी worth नहीं पहचाने। अच्छा, वाई? अच्छा, Credit अगेन schools एक है, बात, right? अच्छा कि आप NGO नहीं है, वाई ऑलवेज लुकिंग फॉर द वॉलंटियर वर्क? मतलब प्रॉब्लम आप एग्जिस्ट करती है। NGO भी नहीं है, आप यस। underprivileged school भी नहीं है, you are an elite हम school. How can you, have you ever given your student this volunteer thing कि आपने इसको फ्री में पढ़ाया? ऑब्वियसली नॉट, दिस इज नॉट हैपनिंग अराउंड इंडिया। Services are charged. हाँ सही है, ऑफ कोर्स हर एक के हिसाब से एडजस्टमेंट होती है, बट ऑकवर्ड लगता है मुझे भी कि
What should I say? Is it rude? It's George. I said, yes, I'm giving my time. ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अच्छा, ये बुली वाला बात अभी आपने करी। आ जब हम देख रहे हैं सोसाइटी इतनी प्रोग्रेस कर गई है, आगे बढ़ रही है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी चीज़ों को डिस्कशन की जा रही है, तो कितना मतलब बुली को लेके अभी तक एक ग्राउंड सेट क्यों नहीं हो पाया? इवन अगर मैं देखा कि एक बच्चे की इंटरटेनमेंट होती है, अगर मैं दूसरे बच्चे को बुली कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए फन है, ये मेरी तफरी है। और मैं कल भी एक पॉडकास्ट में बात कर रहा था, यहाँ तो वहाँ मतलब पेट एनिमल के साथ भी फिर आप करने लग जाते हो कि वो उसको आप Kicking, अजियत hitting. पहुंचा रहे हो। यस। तो ये माइंडसेट कहाँ से, क्या आपने इसको किस तरह से ऑब्जर्व किया है? आप एक चीज मानेंगे कि नर्चरिंग और नेचर, नर्चर वर्सेस हम्म। नेचर, कुछ चीजें पेरेंटिंग पे भी आती है। यस, अच्छा, हम एब्सोल्युटली। कभी कभी बुलिंग को अग्रेशन से कंपेयर कर या। मिला देते, डोंट हम्म। मिक्स अप। अग्रेशन बच्चे के पीछे उसके किसी अंडरलाइन प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, उसके लर्निंग प्रॉब्लम पे भी उसको बुली किया गया होगा और उसका अग्रेशन। वह हम कहते हैं ना कि जो आज बुली कर रहा है ना, वो एक बच्चे ने मुझे लिख के दिया था, मिस, मैं आप कह रहे हैं कि आज बुली कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बुली किया गया। दैट्स डीप। घर में सॉरी, माहौल में क्या देखा, राइट, ओपन है, सिबलिंग्स में बुली हो रहा है समटाइम, जी जी हमारे जी पेरेंट्स जी बुली कर रहे होते हैं, जी, ट्रू। क्लासरूम में टीचर्स बुली कर रहे होते हैं। एक बड़ी स्कूल है, नाम नहीं लेती, परसों ही बात हुई थी हमारी, और वी वर टॉकिंग अबाउट दैट स्कूल, एंड द स्कूल सेट, अ वेल नाउन रिनाउंड हेवी लोडेड एलीट स्कूल सेट, एक 8 साल की बच्ची को कहती है कि यू ऑल आर एनिमल, यू शुड लिव इन जू। आई मीन, कैन यू इमेजिन? ये कोई गवर्नमेंट स्कूल होती तो चलो मैं इग्नोर करती, व्हाट अबाउट दिस? आई वाज शॉक्ड, एंड इट्स स्टिल ऑन माय दिस टॉक शो। अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा दैट पेरेंट हैज शेयर्ड दिस थिंग। आई वोंट नेम द स्कूल, हम्म। बट ये, और सिंपल अभी रिसेंटली मेरा सिंध पुलिस के साथ हुआ है, हाँ, आई वो एम बड़ा वर्किंग। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। आई हैव सीन योर नेम इन दैट एक्चुअली सर्कुलर। आई एम, वो काफी अच्छे अच्छे या, नाम थे उसके अंदर। आई गेस फहद बलूच भी आई गेस बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब मुझे फहद आपका, बलोच, हाँ, मैंने आपका नाम देखा, मुझे बड़ी हम खुशी हुई। हालात अपडेट से हाँ। जानते हैं। एक एक्चुअली एस। 1 ईयर के लिए है, इट्स 1 ईयर के लिए, प्रिजनर्स ओवरसाइट कमेटी। So we are my role is to work as an educationist, facilitator, and psychosocial support. As I told you, I'm not psychologist, but I am inclined towards like mental health of female ladies and children. Because what I see कि इतनी सी उम्र में बच्चों में anxiety आ रही है, हाँ। रिजल्ट कुछ भी, एकेडमिक लोड हो, घर के हम्म। प्रॉब्लम्स हो, ब्रोकन फैमिलीज बढ़ती जा रही है, मुदस्सर, यू नो दैट हाँ, देयर ये भी एक आर बहुत मतलब पास्ट मैं, ट्रॉमास। अच्छा, ये प्रॉब्लम हर स्कूल लेवल पे है। माई मदर इज ऑल्सो गवर्नमेंट स्कूल टीचर। वहाँ की भी मुझे चीज़ें पता चल रही होती हैं कि वहाँ क्या चल रहा है लेवल पे। तो ज़्यादा सीन में यही है कि या तो डाइवोर्स हो गई है, या सेकंड मैरिज हो गई है, बच्चे ननियाल में हैं या ददियाल में हैं। और फिर अगेन जो आपकी वो बेसिक थी माहौल ही आपका डिस्टर्ब है, तो उसमें फिर आप किस तरीके से वहाँ पे आप वो कर पाओगे? एक चीज जो स्कूल से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा फंड बढ़ा के ना एक साइकोलॉजिस्ट हायर कर लें। एक साइकोलॉजिस्ट हर स्कूल में जरूरी है। होनी चाहिए। बाहर तो सोशल वर्कर होते हैं ना, एक साइकोलॉजिस्ट हायर कर लें और अपनी जनरेशन को बचा लें। दैट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, सो द पेरेंट डोंट हैव टू रन टू एनी पीपल लाइक, और सारे अनएक्सपीरियंस्ड। 4,000 देना पड़ेगा। एक अनएक्सपीरियंस बंदे के बाद भी जाएगा उनको, हाँ, अगेन मैं नहीं जानता इस सर्कल में किसी बंदे को, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता। वो पेरेंट की बिल्कुल स्ट्रगल स्टार्ट से स्टार्ट हो रही है, वो एक बंदे पास हम जा रहा है, लोग ढूंढ अपने रहा आप है। को टैग करते थे। हम्म। अब आप साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर में बीएस कंप्लीट भी नहीं किया, बट यू कॉल योर सेल्फ एज अ साइकोलॉजिस्ट। ट्रू। पाकिस्तान में चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है। इफ इवन समवन हैज डन तो यूरोप वगैरह में, यूके में, हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ एज अ साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड हम्म। साइकोलॉजिस्ट? इट कैन नॉट बी डन ऑनलाइन। अगर किया जाता तो सबसे पहले मैं करती। नहीं, आप हम्म।
मैं क्लियरली कहती हूँ, अच्छा मैं रिमीडियल थेरेपिस्ट हूँ, मैं एबीए थेरेपिस्ट हूँ, एक्सपायर हो गया मेरा, क्योंकि ईयरली एबीए थेरेपिस्ट जो है 7-7 हज़ार महीने के अपने सुपरवाइजर को दे, उसके बाद एबीए थेरेपिस्ट को अपने दोबारा से रीन्यू करे। आई सेड नो मोर, because I can't charge 5,500 per session. So why should I do? I'm using my practices for that. I removed ABA therapist from my listing because my certification has been expired. But I can use the things which I was already using before previously. that. And it's about skills. अब तो जमाना बदल गया ना, डोंट रन Exactly. आफ्टर हाँ, ये मेरे बच्चे ने ये पढ़ना है, इस कॉलेज से निकलना है, इस यूनिवर्सिटी ने, वो बीबीए वहां से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा। ऐसे ही है। अगेन थैंक यू सो मच मैम सुकैना कि आपने टाइम दिया, और अगेन आई टू रियलाइज दैट कि लिंक्डइन के डिफरेंट वर्कशॉप्स चल रही होती हैं, आपकी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, और एक बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप काम कर रही हैं कि वो जो जिन लोगों ने फ्यूचर लीडर्स बनना है और उसको लेके काम करना, और उनकी चीज़ों का ख्याल रखना, एक बड़ा एक, और फिर बाज़ लोग डरते भी हैं, घबराते भी हैं, आ, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं, या एक सिर्फ अच्छी सी चीज़ें सुनना चाहते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट साइड अब साइड स्टोरी सुनने को मिल रही होती हैं रोज़, और फिर उनको लेके काम करना, देखना। आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर ऑल द डूइंग वर्क, और साथ साथ फिर आप हमें भी टाइम देती हैं कि आप बात कर सकें। द लास्ट जस्ट कंक्लूड और आप क्लोज मेरा सेशन। वर्ड स्प्रेड करेंगे, बिकॉज आप मेरे इस वर्ड को स्प्रेड करेंगे। एजुकेशन इज फॉर ऑल। यस। इफ आई एम वर्किंग अंडर सिंध गवर्नमेंट, इट्स अ प्रो बोनो वर्क, आई हैव नॉट बीन पेड। मैं अपना कम्यूटिंग भी खुद पे करती हूँ, जहां करना है वहां फ्री कर अमेजिंग, रही हूँ। अमेजिंग। तो क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आई फील एजुकेशन इज फॉर ऑल, या। regardless of where they live, where they belong, what's the age, what's the gender. जब रसूल ने कह दिया ना, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक, पीरियड, या। खत्म। एज रिस्ट्रिक्शन हटा दें, बच्चा कभी भी पढ़ सकता है। राइट टाइम नीडेड एंड राइट स्टाइल नीडेड। एक्जैक्टली कि वो उसको आप बाउंड्री में ले जाके बंद ना करो, जहाँ तक स्पेस आप दे सकते हो आप उसको स्पेस प्रोवाइड करो। लास्ट में सुकैना कमेंट क्लोजिंग का है, क्या कहना चाहेंगी, स्पेशली मैसेज फॉर टीचर्स और फॉर द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी? My just message is that include everyone. सिंपल चीज, आपके सामने एक पिज्जा आता है ना, दो पिज्जा आपके सामने आए, एक 1400 का है और एक 1200 का है, सही है? तो आप कौन सा वाला पिज्जा लेंगे? ऑब्वियसली 14। 1200 वाले लेंगे? 1200 वाला लेंगे, है ना, सस्ता है। मगर उसके नीचे आपने पढ़ा नहीं, उसमें लिखा था इंक्लूसिव ऑफ टेक्सास, टैक्सेस हाँ। था, वो वाला एक्सक्लूडेड था। कौन सा लेंगे? इंक्लूसिव वाला लेंगे ना। जब यस। आपको पिज्जा इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस चाहिए, तो उन पेरेंट्स को भी अपना बच्चा इंक्लूडेड चाहिए। वो इंक्लूड दैट। एजुकेशन इज फॉर ऑल एंड इट शुड बी कॉमन। थोड़ा सा मेन स्ट्रीम आए इस चीज की तरफ कि छोटे छोटे अपनी टीचर्स में ये कोर्सेज लगाते रहें। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये बच्चे कल हमारे हैं कि किसी के यहाँ भी है, एंड दे सोसाइटी है। आर नॉट, गॉड फॉरबिड कुछ नहीं है, ये न्यूरो डाइवर्स है, एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, दे आर ब्यूटिफुल। दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड माय पेज द स्टोरी ऑफ आवर हिडन जेम्स। फाइंड देम अप एंड बिल्ड देम अगेन। यस, यस, थैंक यू सो मच मैम अगेन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूँगा इन टॉपिक्स को लेके। एंड बेस्ट विशेस फॉर द लर्निंग लैब एज वेल, कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो कि काम कर रही हैं इस सब्जेक्ट को लेके, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप डेट कि आपको से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली कि किस तरीके से आप uh, अगर घर में सब कुछ सही भी है आपकी फैमिली में, तो एटलीस्ट सोसाइटी के अंदर आपने अपना बेटर पार्ट प्ले करना है। अगर आप किसी बच्चे के देख रहे हैं तो एटलीस्ट उसको आप मजीद टॉर्चर ना करें, मजीद बुली ना करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।